students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 11th chapter of class 3rd, which is about measurement. Okay, let's start the chapter. See, we come across many things in our daily life which require measurement. We purchase fruits and vegetables with certain weight. We would like to know how far our houses is from the school. We would like to know how tall we are or how heavy we are. We like to know the time and how long it takes to finish our work. So student, what they saying कि हम अपनी लाइफ में डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ऐसे फेस करते हैं जिसमें मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जांपल, जब आप मार्केट में जाकर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स परचेज करते हो, सो उसमें भी आपको एक सर्टेन वेट पता होना चाहिए कि हाउ मच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यू आर गोइंग टू परचेज, राइट. सिमिलरली हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो हाउस है वो स्कूल से कितने डिस्टेंस पर है. ओके, हम कितने टॉल, कितने हैवी हैं. ओके, क्या टाइम है एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर समय पे हो रहा है, या फिर किसी वर्क को फिनिश करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है. ओके, We would like to know how hot or cold a day is. एक डे कितना hot या cold है. When we buy clothes, we like to tell the shopkeeper for what length we require. जब आप clothes यानी कि कपड़ा खरीदे जाते हो तो आपको पता होना चाहिए shopkeeper को बताने के लिए कि आपको उस कपड़े की कितनी length required है. So there are different instruments for measuring length, weight, time, temperature, distance, rainfall and volume. So इस तरीके से students different instruments हमारे पास होते हैं क्या measure करने के लिए किसी भी object की length, weight, time, temperature, distance, rainfall and volume को measure करने के लिए. First of all, we are going to talk about length. तो what is length? A meter is the standard unit of length. ठीक है, एक standard unit जो है length की वो क्या है? मीटर है. Okay, length of cloth is measured in meter and distance of place are measured in kilometer. So किसी भी cloth की जो length है उसको आप मीटर में measure करेंगे and दो different places के बीच का जो distance है उसको किलोमीटर्स में measure किया जाएगा. Short distances को हम centimeters and millimeters में भी measure कर सकते हैं. Now they have shown you some instruments which are used for measuring length. Length को measure करने के लिए ये कुछ instruments हैं जिन्हें आप use कर सकते हो. Short length are measured with a ruler in millimeter. अगर बहुत short length है तो आप उसे एक ruler के जरिए ruler के through measure कर सकते हैं and जो unit use करी जाएगी that will be millimeter. A measuring tape measures length in meter and centimeter. फिर उसके बाद जो measuring tape होती है उसके जरिए आप मीटर एंड सेंटीमीटर में लेंथ मेजर करते हैं. As we all know that 1 meter is equals to 100 centimeter. Okay? Now, distance between two places are measured in kilometers. दो different places के बीच का जो distance है उसे हम किसमें किलोमीटर्स में measure करते हैं as 1 kilometer equals to 1000 meters होता है. The next we are going to talk about weight. So, weight is measured in grams and kilograms. अब बात करें weight की तो weight आपका ग्राम and kilogram में measure किया जाता है. Now there are instruments which are used for measuring weight. We use a balance or weighing machine to weigh the things. Okay? चीज़ों को weigh करने के लिए या तो आप balance या weighing machines का use करते हैं. The weights are expressed. उसके बाद weights को express किया जाता है in grams और kilogram. ठीक है? 1000 grams equals to कितना kilogram? 1 kilogram. You can see he is a person who is finding his weight in a weighing balance. Weight machine. वे मशीन में ये पर्सन अपना वेट फाइंड कर रहा है. ओके, देन हाउ डू वी एक्सप्रेस द वेट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स ग्राम्स, किलोग्राम्स और मिलीग्राम्स. स्टूडेंट व्हाट दे सेइंग कि यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं इनके वेट को आप कैसे मेजर कर सकते हो ग्राम में, किलोग्राम में, मिलीग्राम में. फॉर एग्जांपल राइस आपका किलोग्राम में मेजर किया जाएगा, पोटैटो भी किलोग्राम में, पेपर आपका ग्राम में मेजर किया जाता है, गोल्ड आपका मिलीग्राम में, सैफरन भी आपका ग्राम और किलोग्राम में मेजर किया जाता है. नेक्स्ट इज टाइम. टाइम इज मेजर्ड. अब टाइम को मेजर करते हैं हम सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स में. वी मेजर टाइम विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉक और अ वॉच. एंड टाइम को मेजर करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस है दैट इज अ क्लॉक और अ वॉच. ओके, द फेस ऑफ द वॉच और क्लॉक. अब एक वॉच या क्लॉक का जो फेस है उसको हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ईच शोइंग 1 आवर. हर एक पार्ट किसको 1 आवर को शो करता है. इन अ क्लॉक, अभी क्लॉक में जो आवर हैंड है वो शॉर्ट हैंड होता है एंड वो हमें आवर्स शो करता है. इट गोज राउंड द क्लॉक ट्वाइस अ डे. एंड ये जो आवर हैंड है ये पूरा अराउंड द क्लॉक कितना ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार राउंड करता है. द लॉन्ग हैंड, अब इस वॉच में या क्लॉक में जो लॉन्ग हैंड है वो आपका मिनट हैंड होता है जो कि पूरे अराउंड द क्लॉक गो करता है फॉर 24 टाइम्स अ डे. As we all know, 60 seconds equals to 1 minute, 60 minutes equals to 1 hour, and 24 hours equals to 1 day. And these are the devices or the different types of clock. This is clock, this is wall clock, and this is digital clock, which we use for measuring time.
नेक्स्ट में आप वॉल्यूम और कैपेसिटी. वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ थिंग. एक पर्टिकुलर थिंग कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, दैट इज नोन एज वॉल्यूम. लिक्विड्स एंड गैसेस जो हैं वो यूजुअली मेजर किए जाते हैं बाय वॉल्यूम. वाटर, मिल्क, पेट्रोल, मेडिसिन, ये सभी आपके बाय वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं. वॉल्यूम आपका एक्सप्रेस किया जाता है इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड. ओके. नेक्स्ट वी हैव टेम्परेचर. टेम्परेचर इज एक्सप्रेस इन डिग्रीज. टेम्परेचर को डिग्रीज में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज सेल्सियस. बट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने की, दैट इज केल्विन. ओके. सी दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज व्हाट इट इज नोन एज थर्मामीटर. ओके. नाउ टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी. अगर बात करें हम अपने बॉडी टेम्परेचर की, सो एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस. ओके. टेम्परेचर टेल्स हाउ हॉट और कोल्ड अ डे इज. टेम्परेचर बताता है कि एक डे कितना हॉट या कोल्ड है. ओके. एंड इफ वी टॉक अबाउट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. एंड द वाटर फ्रीजेज इट. वाटर कितने डिग्री टेम्परेचर में फ्रीज करना स्टार्ट करता है? एट 0 डिग्री सेल्सियस. बॉडी पार्ट्स यूज टू मेजर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. अब यहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जिनको आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं. लाइक दिस इज मेजरिंग यूनिट्स. अब ये कुछ मेजरिंग यूनिट्स है लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड नहीं है. लाइक दिस, यहाँ से. ओके. ये जो लेंथ है इसको क्या बोला जाता है? क्यूबिट. दिस लेंथ इज नोन एज फुट स्पैन. दिस लेंथ इज नोन एज हैंड स्पैन. एंड दिस लेंथ इज नोन एज स्ट्राइड. ओके. इन ओल्डन डेज पीपल यूज देयर बॉडी पार्ट्स टू मेजर डिफरेंट लेंथ. पहले टाइम पीरियड में क्या हुआ करता था, तब लोग अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे क्या करने के लिए? लेंथ को मेजर करने के लिए. ओके. सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड. I hope you all must have understood about the concept of measurement and it was very clear to you. Let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.